Hello students, in today's class we are going to learn a new tool of MS Excel and that is pivot table. Pivot table is a very flexible tool of Excel which is used to explore and summarize data in a manner so that a business can take decisions in a more effective manner. We are studying computer application in business. So an important application in business is to analyze the data from different angles, from different point of view. So we'll be looking at a data and we'll be using pivot table to analyze that data in different manners, right? Let's take an example. See here, we have this data regarding a business, say a wholesale business who is having operations in North and South Delhi, right? These are the dates on which the transactions takes place. Some dates I've taken for 2018 and 2019. The buyer A Limited, B Limited, C Limited and D Limited. Suppose these four customers are there with the business. The commodity in which the business deal is wheat, rice and maize. So on different dates, different commodities are sold. And in which market? Suppose the business operates in two market, North Delhi, South Delhi. So North and South, इस तरह से हमने ये transactions में लिखा है. And what is the value of the transaction that we have written. So suppose this is the data of 2 years कि किस किस को कौन सी commodity कौन सी market में sell की है, who's the buyer and what is the value. So now the business wants to analyze this data. What we'll do, we'll make a pivot table. For making a pivot table, we'll go to insert. In insert, the first option is here, pivot table. Like you insert a table, now we're inserting a pivot table. So let's click on this pivot table. So it's opened up a window, create pivot table. For that, you have to first select the range. Select a table or a range. कौन से डेटा, जो आपका डेटा है तो हम वो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं अभी. We have to make a pivot table out of this data. So we are selecting the table or the range. Now it asks choose where you want the pivot table report to be placed. So अब ये तो हमारा ओरिजिनल टेबल है. Now a new table will be inserted, that will be the pivot table. So where do you want to place it? You want to place it in the same worksheet. You can use existing worksheet and define the cell, or you can also use a new worksheet. So let's use the same worksheet so that we can look at the original data as well at the same time. So लोकेशन इसकी रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं जी सेल से, राइट. यहाँ पे आपका पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा. नाउ वी प्रेसिंग ओके. सो एज सुन एज वी क्लिक ओके, सी G2 में एक पाइवट टेबल आ गया विच विल बिल्ड. ये स्पेस आ गया पाइवट टेबल के लिए. एंड दिस इज द विंडो. इसके थ्रू हम ऑपरेट करेंगे कि हमें कैसे कैसे कौन सी रो में, कॉलम में क्या क्या फील्ड्स चाहिए. दैट वी विल स्पेसिफाई हेयर एंड अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिकेशन इन दिस स्पेस द पाइवट टेबल विल बी क्रिएटेड, राइट. सो लेट्स सी पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट. यहाँ पर आपके पास फील्ड्स हैं जो भी आपके ओरिजिनल डेटा में हैं. डेट, बायर, कमोडिटी, मार्केट एंड वैल्यू. दीज 5 fields are there. So what all fields you want in your pivot table? Do you want all of them or you want a limited numbers? Suppose we are choosing commodity. जैसे जैसे हम चूज करते जाएंगे यहाँ पे टेबल बनता जाएगा. We are choosing commodity, market and value. Suppose I want these 3 fields in my table. अब हम यहाँ पर देखते हैं. लेट्स लुक एट दिस विंडो. कमोडिटी, मार्केट एंड वैल्यू, ये 3 हमने फील्ड्स चूज कर लिए. नाउ ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो. यहाँ आप देखेंगे 4 स्मॉल विंडोज हैं आपकी विच आर रेलिवेंट. फर्स्ट वन सेज रिपोर्ट एंड फिल्टर का साइन लगा हुआ है.
second is column, third is row, column labels, row labels, and this is the fourth one, that is values. ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं आपके, रिपोर्ट, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स एंड वैल्यूज़. आपको डिफाइन करने हैं यहाँ पर कौन कौन से फील्ड्स आपको फिल्टर के लिए चाहिए, कौन से फील्ड्स आपको कॉलम में चाहिए, कौन से फील्ड्स रो में चाहिए, और कौन सी वैल्यूज़ चाहिए आपको, जिनका आपको सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ऐसा कुछ ऑपरेशन उसके ऊपर करना है. राइट. तो सपोज हम यहाँ से फील्ड्स को ड्रैग करेंगे इन पर्टिकुलर बॉक्सेस में. मेन है, सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हैं. देखिए, रिपोर्ट बाय कमोडिटीज़ चाहिए आपको, बाय मार्केट चाहिए. सपोज हम कमोडिटी को यहाँ से ड्रैग करके और रिपोर्ट वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं. राइट. We have specified that we want a report according to commodity. जैसे ही हमने यहाँ पे commodity को ड्रॉप किया रिपोर्ट फिल्टर में, सो देखिए ऊपर आ गया यहाँ पे commodity लिखा हुआ, और ये एक फिल्टर लग गया है. यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो से आप देखेंगे commodity. There are 3 commodities. You want to view the records of all the commodity, or you want to know the records only of maize, only of rice, only of wheat, or you want to select multiple items. Right now all of them are selected. हम यहाँ से सिर्फ मेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेज़ एंड राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं. तो राइट नाउ ऑल सिलेक्टेड है कमोडिटीज़. सो आपका ये कमोडिटी वाइज आपका पाइवट टेबल बन गया है. अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, इसने ऑटोमेटिकली लिया है, बट वी कैन स्पेसिफाई दिस ऑल्सो. रोज़ में आपको क्या चाहिए, कमोडिटी वाइज आपने इसको फिल्टर कर लिया है. अब रो में आपको चाहिए मार्केट, इसने ऑटोमेटिकली मार्केट लिया हुआ है. अदरवाइज हम यहाँ से मार्केट को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे मार्केट कर सकते थे. राइट. मार्केट रोज़ में आपका मार्केट वाइज क्लासिफिकेशन आएगा. मार्केट्स आपके ओनली 2 टाइप्स की हैं, इधर नॉर्थ और साउथ. तो रो लेबल्स के अंदर आपका आया मार्केट, नॉर्थ एंड साउथ, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. कॉलम्स में अभी हमने कुछ नहीं लिया है. वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ही ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका समेशन या जिसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं. तो ऑटोमेटिकली इसने वैल्यू में वैल्यूज़ को यहाँ पर ले लिया है, जो हमारा यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन अमाउंट है, और बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसका समेशन कर दिया है. आप कुछ और भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसने अभी सम किया है. तो अब रीड करते हैं इस टेबल को. इट सेज, किस तरह से टेबल शो कर रहा है हमारे को, कमोडिटीज़. हम देख सकते हैं कि ऑल कमोडिटीज़, नॉर्थ में टोटल जो है 7,74,530 का ट्रेड हुआ. साउथ मार्केट में 3,62,000 का टोटल ट्रेड हुआ. ग्रैंड टोटल आपका हो गया 11,36,530. इफ़ आई वॉन्ट टू व्यू कि सिर्फ राइस का कितना ट्रेड हुआ नॉर्थ मार्केट में और साउथ मार्केट में, तो मैं यहाँ से ऑल को हटा दूंगी. ओनली राइस आई विल क्लिक. आई वांट टू व्यू माय रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी राइस. सो राइस के लिए आपने देखा नॉर्थ में 5 लाख एंड साउथ में 3,02,000, दैट इज 8,02,000 का ग्रैंड टोटल ये ट्रेड हुआ है नॉर्थ एंड साउथ में. सो व्हाट वी आर सेइंग, रिपोर्ट क्या है हमारी, कमोडिटी वाइज फिल्टर लगाया है हमने. रो लेबल्स हैं हमारे नॉर्थ एंड साउथ, और हम सम कर रहे हैं वैल्यूज़ का. तो ये आपके 4 बॉक्सेस. राइट. सपोज यहाँ पर ही मैं इसको चेंज कर देती हूँ. मैं कमोडिटी वाइज ना करके, अब यहाँ पे आप मल्टीपल राइस एंड वीट का भी देख सकते हैं. देखिए मैंने राइस एंड वीट दोनों भी चूज़ कर लिया, तो मेरे को दोनों का कंबाइंड दिखाएगा ये. नॉर्थ में इतना हुआ है राइस प्लस वीट का, और साउथ में इतना हुआ है, एंड ग्रैंड टोटल आपका हो गया है 10,57,500 फॉर राइस एंड वीट. सो लाइक दिस हमने कमोडिटी वाइज किया. अगर सपोज हमें यही मार्केट वाइज करना होता, तो यानी कि मैं यहाँ से चूज़ कर सकूँ
आप यहाँ से अभी फर्दर इसमें भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको कमोडिटी वाइज देखना है वीट एंड राइस का, बट ओनली इन द नॉर्थ मार्केट, नॉट इन द साउथ। तो आप यहाँ से रो लेबल्स में से भी चूज़ कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू व्यू। आई वांट टू सिलेक्ट जस्ट नॉर्थ, तो मैं साउथ को हटा देती हूँ एंड यू कैन व्यू ओनली द वैल्यू फॉर द नॉर्थ। सो बहुत सारा, अभी तो राइट नाउ वी डोंट हैव मच डेटा in this sheet, but if you have humongous amount of data और उसको filter करके आपको जो information extract करनी है, limited information, you can extract that out of it using the pivot table, right? So यहाँ पे all कर देते हैं फिर से, और मैं commodities में भी ये filter हटा देती हूँ, अभी all कर देती हूँ, right? अब मैं यहाँ से कमोडिटी को चेंज करती हूँ, मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ इस कमोडिटी को, यहाँ से मार्केट को भी हटा देते हैं, राइट। हम रख रहे हैं मार्केट को रिपोर्ट में। नाउ आई वांट टू व्यू द रिपोर्ट मार्केट वाइज कि नॉर्थ में कितना हुआ डिफरेंट कमोडिटीज़ का और साउथ मार्केट में कितना हुआ। तो मैंने क्या क्लासिफिकेशन रखा, रिपोर्ट फिल्टर एज पर मार्केट, एंड रो में मेरे को क्या चाहिए, रो में मेरे को चाहिए कमोडिटीज़। सो मैंने वाइसा वर्सा कर दिया जैसे हमने पहला टेबल बनाया था। सो आई हैव पुट कमोडिटीज़ हेयर। नाउ सी व्हाट इज़ द टेबल लाइक। इट सेज मार्केट के अकॉर्डिंग है राइट नाउ, ऑल मार्केट दैट इज नॉर्थ एंड साउथ बोथ मार्केट्स का शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ द रो लेबल्स, अकॉर्डिंग टू द कमोडिटीज़ व्हीट राइस एंड मेज के अकॉर्डिंग। सो इन नॉर्थ एंड साउथ मार्केट मेज़ का टोटल ट्रेड हुआ इन 2 सालों में 79,030, राइस का 8,02,000 एंड व्हीट का 25,05,050, नो 2,55,500, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इफ़ आई वॉन्ट टू सी जस्ट द नॉर्थ मार्केट, नॉर्थ मार्केट में मेज राइट और वीज का इतना इतना ट्रेड हुआ है, राइट। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू व्यू, दिस पाइवट टेबल अलाउज मी टू हैव मल्टीपल व्यूज ऑफ द सेम डेटा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वॉट अ बिजनेसमैन wants out of this data. He can extract that information very simply. ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हैं what you want and accordingly pivot table के अंदर changes होते रहते हैं. Now this was when we use just the row labels, 2 dimension. अब अगर हमें rows और columns दोनों लेना हो और हमें information further classify करनी हो, आप देखिए सपोज मैं डेट भी ले लेती हूँ। यहाँ पर एक और हमने फील्ड ऐड कर दिया डेट, एंड नाउ कमोडिटी को ले लिया मैंने कॉलम्स में, मैंने कमोडिटी को ले लिया कॉलम में, रिपोर्ट है मेरी मार्केट वाइज, फिल्टर लगा हुआ है मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट। कॉलम्स रो लेबल के अंदर मैंने डाल दिया डेट, आप अपने आप से डाल सकते हैं, वैसे इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, बट आई वांट इन द रो लेबल्स आई वांटेड डेट वाइज एंड इन द कॉलम लेबल्स आई वांट कमोडिटी। देखिए व्हेन यू आर यूजिंग बोथ रो एंड कॉलम, सो रोज में आ गया आपका डेट वाइज एंड कॉलम लेबल्स आ गए आपके कमोडिटीज़। आपने कॉलम में ड्रैग किया है कमोडिटी, रो में ड्रैग किया है डेट, एंड रिपोर्ट का फिल्टर किया अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो रिपोर्ट फिल्टर तो यहाँ पे लग गया मार्केट, राइट नाउ नॉट सिलेक्टेड है, अगर हम ऑल कर दें, आई एम सिलेक्टिंग ऑल, ओके। सो all the transactions of all the markets are there, and आपके रो लेबल्स हैं all your dates and your column labels are your commodity. So maize, rice and wheat, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो भी थी हमारी कमोडिटीज़, जितने भी टाइप्स की थी, इस डेटा के अंदर सिर्फ 3 कमोडिटीज़ थी। अगर यही 5 डिफरेंट कमोडिटीज़ होती तो आपकी 5 यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स बनकर आ जाती।
maize, rice and wheat, and this is the grand total. So now you can see the data. आप फर्दर क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं इसका कि डेट वाइज एंड कमोडिटी वाइज, और कमोडिटी वाइज भी आपके पास ग्रैंड टोटल आ रहा है और डेट वाइज भी ग्रैंड टोटल आ रहा है, राइट। अब अगर हमें ग्रैंड टोटल ना चाहिए, सम ना चाहिए, काउंट ऑफ वैल्यूज़ चाहिए हो, सो देखिए यहाँ पर सम आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। एज सुन एज वी क्लिक दिस विंडो अपीयर्स एंड लास्ट में आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग। वी वांट टू चेंज दिस वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। सो राइट नाउ सम कर रहा है ये, बट हमें चाहिए काउंट ऑफ वैल्यू, या हमें चाहिए एवरेज, तो हम काउंट करके देखते हैं। ओके, सो देखिए ये काउंट दिखा रहा है कि किस तरह से डेट वाइज आपका, सो नंबर ऑफ काउंट्स, ट्रांजैक्शन वीट का 1 है मार्च 18 में, मई 18 में राइस का 1 है, राइट। एक और चीज़ हम इसमें डेट के साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए डेट को क्लिक करते हैं। सपोज मेरे को ये मंथ वाइज चाहिए, इस डेट पे क्लिक करते हैं एंड राइट क्लिक किया हमने एंड आई से ग्रुप, सपोज ये देखिए यहाँ पे सितंबर 12 का भी है और 30 सितंबर का भी है, राइट डेटा। आई वांट टू ग्रुप देम, कि मंथ वाइज ग्रुपिंग हो जाए, डेट वाइज ना हो बट मंथ वाइज हो। सो मैंने किसी भी डेट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया एंड आई से ग्रुप। एज सुन आई से ग्रुप, इसने कहा स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, तो जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग डेट थी फ्रॉम 2018 मार्च से दिसंबर 2019 तक की, वो उसने अपने आप ले ली है। एंड नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई दैट आई हैव टू ग्रुप इट बाय seconds, minutes, hour, days, months, quarters, years. Let's group it by months. Okay. So देखिए जो जो हमारे पास डेट्स अपीयर हो रहे थे उनके मंथ्स आ गए, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। एंड अब ये काउंट में दिखा रहा है, ये देखिए सितंबर में, अब ये सितंबर में दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, 2019 के भी और 2018 के भी। तो अगर हमें मंथ वाइज देखना है, इस तरह से इसने क्लबिंग कर दिया है। सो कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ की इन डिफरेंट मंथ्स। मार्केट्स में आप सिर्फ नॉर्थ का देखना चाहते हैं या सिर्फ साउथ का देखना चाहते हैं, यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। सो आप यहाँ से जो भी चाहते हैं रिपोर्ट, उस अकॉर्डिंग आप ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। हमने कमोडिटीज़ यहाँ से रिमूव कर दी, सपोज ये वापस आ गया, कमोडिटीज़ की क्लासिफिकेशन हट गई है। व्हाट यू वांट इज़ व्हाट यू हैव स्पेसिफाइड, यू वांट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द फिल्टर मार्केट। सो मार्केट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं आप इसको, ऑल, नॉर्थ या साउथ। एंड व्हाट यू स्पेसिफाइड दैट यू वांट रो लेबल्स डेट। अभी आपने डेट, तो डेट के अकॉर्डिंग आ गया कि मार्च में इतनी 2 ट्रांजैक्शंस, मई में 2 ट्रांजैक्शंस, जून में 1 ट्रांजैक्शन, लाइक दिस। यहाँ से हम वापस से काउंट की जगह सम करना चाहते हैं, तो चेंज वैल्यू फील्ड सेटिंग टू सम। ओके, सो ये समेशन आ गया मार्च में कितना। डेट हटा के हम वापस से कमोडिटी रखना चाहते हैं, हमने ऐसे कर लिया। So this is how you can analyze your data from different point of views using pivot table. Now for the same pivot table there is also an option of inserting a pivot chart. इसी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास साथ साथ बनकर आ सकता है। For that यहाँ पे ही इंसर्ट के अंदर ही आपका होता है पाइवट टेबल में पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट अगर आप करेंगे तो साथ साथ आपका टेबल के साथ साथ एडिशनली चार्ट भी बन के आता जाएगा। देखिए
एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इसे एक दूसरी शीट में कॉपी कर लेते हैं हम, सॉरी। Control C and we are inserting a pivot chart. It is asking to select the table range, तो ये table range दिया हमने, and existing worksheet चाहिए या कहीं और चाहिए, that you can specify here. So हमें चाहिए यहाँ से ओके। सो देखिए, क्योंकि हमने पाइवट चार्ट पे किया था, ये चार्ट आ गया है एंड चार्ट के पीछे आपका पाइवट टेबल भी आ गया है। सो हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, इनकी पोजीशन। पाइवट टेबल आपका यहाँ से आ रहा है, चार्ट को हमने मूव कर दिया है नीचे। अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कमोडिटी, मार्केट, वैल्यू, ठीक है, या सिर्फ हम कमोडिटी एंड वैल्यूज़ रख रहे हैं यहाँ पर। रिपोर्ट को फिल्टर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, लाइक दिस। तो आपका साइमल्टेनियसली ये टेबल बनता जा रहा है एज वी हैव सीन अर्लियर, एंड नाउ यू कैन सी दैट साइमल्टेनियसली आपका ये चार्ट भी बनता जा रहा है, विच इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा to bring more clarity. So आप pivot table, pivot chart simultaneously बना सकते हैं by altering what fields you want in row labels, in column labels, only row labels, or you want both of them. So this is your pivot table. Thank you.